Hello and welcome to UPSC As Desk Official. I hope you all are doing well. So today we will take a look at how the nation and the world reacted after the resignation, from students celebrating on the streets to statements by the political leaders, reactions from journalists and editorials in national and international newspapers, and posts by the public figures. This story has generated widespread attention, so let's explore the biggest reaction one by one. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस रेजिग्नेशन के बाद देश और दुनिया भर से आए रिएक्शंस, स्टूडेंट्स से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और पब्लिक फिगर्स ने इस डेवलपमेंट पर अपनी अपनी बात रखी है। इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के सिर्फ उनके रिएक्शंस और स्टेटमेंट्स देखेंगे ताकि आप खुद समझ सके कि पूरे डेवलपमेंट को अलग अलग लोग किस नजरिए से देखते हैं। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना। बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। This step taken by the government and the Education Minister Dharmendra Pradhan ji to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy, and we should all cherish it. At the same time, I thank and congratulate the whole young generation. Let's begin with students' reaction. Across campus and protest sites, celebrations broke out. Many described the resignation as a significant movement and thank everyone who supported the movement. At the same time, several students representatives emphasized that their broader goal remain important and they will continue to follow development closely. Pranka is spokesperson CJP, and Neha Bora is President ISA. And Neha was the one who fasted for 23 days at the site. Good to see both of you there. I can see smiles on your face, or a hint of a smile on your face, Neha. What does this mean for you? Do you believe that this is what you had set out to do, or was Dharmendra Pradhan collateral damage to the larger crisis of the education system? No, this is, I think, precisely what we had set out to do. In fact, we achieved more than what we had set out to do. We had set out to take Dharmendra Pradhan's resignation, and instead what we also achieved along with Dharmendra Pradhan's resignation was a young people, a young nation that has learned to fight its battles. खुशी का आलम है, और मैं ये बोलूंगी कि ये सिर्फ रिजाइनेशन या फिर पेपर लीक की बात नहीं है, ये है जेनजीज के फ्यूचर की बात। ये फ्यूचर की खुशी है, ये हमारी शिक्षा की जीत हुई है। आज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की जीत हुई है, जो कहीं ना कहीं मर गई थी, वो फिर जिंदा हुई है। Journalists and news commentators offered different perspectives. Some called it a major political development, while others focused on what it could mean for educational policy and public accountability. Let's hear what they had to say. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जेनजी जीत गई, जनता जीत गई। What do you think makes this particular Gen Z protest stand out to you? First of all, I want to congratulate Anand. You know, it is Delhi police was doing. The older generation was very happy to go with the Delhi police fact checks. The reality was very different. It required a young guy to take the initiative. So hats off to you, Anand, and well done. Thank you. That's what I want to see more of Gen Z. People wishing to protest peacefully be allowed to do so without the fear of harassment, the fear of arrest, or the fear of injury. And it is incumbent on security forces there, as it is everywhere, to ensure that those rights are protected. Others also shared their views on the development. Some congratulated the students, while others highlighted the importance of peaceful democratic participation.
He also drew international attention. Leading global news organization reported on the protests, the government response, and the resignation, placing the events in the wider context of democratic movement and the पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और आखिरकार हफ्तों के प्रोटेस्ट और लगातार पब्लिक प्रेशर के बाद रेसिग्नेशन हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस डेवलपमेंट पर देश और दुनिया का रिएक्शन क्या है। स्टूडेंट से लेकर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया तक हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी। रेसिग्नेशन की खबर आते ही कई जगह पर स्टूडेंट्स ने खुशी जाहिर की। प्रोटेस्ट साइट्स और कैंपस में सेलिब्रेशन देखने को मिले। कई स्टूडेंट लीडर ने इसे मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बताया और सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका फोकस सिर्फ रेसिग्नेशन तक सीमित नहीं है, आगे भी वो अपनी बाकी डिमांड्स और रिफॉर्म्स के लिए इंतजार बनाए रखेंगे। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए एंड जो हमारे सजेशंस थे डिमांड चार्टर में 5 पॉइंट के, उनको इम्प्लीमेंट करिए। इसकी बात करते हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट ने इस डेवलपमेंट को अलग अलग नजरिए से देखा। कुछ ने इसे पब्लिक प्रेशर की जीत बताया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ रेसिग्नेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिफॉर्म की जरूरत है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की इस खबर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी प्रोमिनेंटली कवर किया। नेशनल न्यूज़पेपर ने डेवलपमेंट को अलग अलग हेडलाइन के साथ रिपोर्ट की। ब्रिटिश ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने स्टूडेंट्स को बधाई दी तो किसी ने पीसफुल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। पॉलिटिकल लीडर्स के रिएक्शंस पर अब एक नज़र डालते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इस डेवलपमेंट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने रेसिग्नेशन का स्वागत किया, जबकि कुछ ने कहा कि असली चैलेंज अब रिफॉर्म को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। चलिए देखते हैं किस लीडर ने क्या कहा। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. So I'm very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution. अभी आया हूँ मैं, बात में अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility. क्या खुशी का आलम है। और मैं ये बोलूंगी कि ये सिर्फ रिजाइनेशन या फिर पेपर लीक की बात नहीं है, ये है जेनजीज के फ्यूचर की बात। ये फ्यूचर की खुशी है, ये हमारी शिक्षा की जीत हुई है। आज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की जीत हुई है, जो कहीं ना कहीं मर गई थी वो फिर जिंदा हुई है। तो रेसिग्नेशन के बाद देश और दुनिया से आए कुछ सबसे बड़े रिएक्शंस। ये डेवलपमेंट कई लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली परीक्षा अब आगे की पॉलिसीज और रिफॉर्म की होगी। आपका इस पूरी डेवलपमेंट पर क्या ओपिनियन है? क्या ये एक नई शुरुआत है या अभी और भी बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए यूपीएससी डेस्क ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। Thank you so much. One resignation has sparked thousands of reaction from students on the street to newspaper editorials and international headlines. Whether this marks the end of one chapter or the beginning of another one will depend on what happens next. So, what do you think? Which reaction stood out to you the most? And let us know in the comment box and subscribe for more in-depth coverage. Thank you so much.